Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 14 September 2021 and I am teaching you chapter number 11, A Friendly Neighborhood. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I just discussed with you what is the, for example, around your house there are many houses. So what is the relation with that people with your family members? So that is they are known as your neighbors. And after that we discuss about the neighborhood. What are the neighborhood? So neighborhood places, you can find the neighborhood places in the villages also, towns also, cities also, and in big cities also. Okay, after that what we have discussed, helping one another, how in your neighbor, how you can help your neighbors. So these things we have already discussed in the previous video. Now in today video we will discuss neighborhood services. Okay, so firstly you note down what are the neighborhood services which is required by all the peoples. Okay, so now today we will discuss neighborhood services. Neighborhood services. Okay, so as in the previous video I have already discussed with you what are the neighborhood services, like market, school, hospital, police station, post office, bank. All these are the neighborhood services which make your life more and more comfortable. So now in today video, one by one we will discuss all the neighborhood services which is required by us, and these neighborhood services help the people who are living around in that area. Okay, so firstly we start with the school. Okay, firstly we will start with the school. So most locality have neighborhood schools. Most of these schools are of a smaller children. See student, see where you are living, जहाँ भी आपके घर की लोकेशन है बेटा, आप घर वहीं लेते हो जहाँ मैक्सिमम सर्विसेज आपको मिल सके. ओके, स्पेशली नेबरहुड प्लेसेस में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ क्या एक स्कूल होना चाहिए. बिकॉज सी इन व्हेन द kids are small or when children are small, so parents don't send their children to those schools which are very far away from their house. ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं भेजते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं. ठीक है, सो फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर kids to the schools which are very far away. So in these cases they prefer to those schools which are in their neighborhood. ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके नेबरहुड प्लेसेस पे जो स्कूल्स हैं उनको वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं. इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीज़न स्कूल मोस्ट लोकेलिटीज हैव नेबरहुड स्कूल्स. और आप जहाँ भी रहते होंगे मैक्सिमम नेबरहुड प्लेसेस में स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए. ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स स्मॉल चिल्ड्रंस को ज़्यादा दूर फार अवे सेंड करने के लिए प्रिफर नहीं करते. ठीक है, सो डैट दे सेंड देयर किड्स टू द स्कूल्स विच आर इन देयर नेबरहुड प्लेसेस. उनके अगल बगल जो स्कूल होगा उसी में अपने बच्चों को भेजते हैं. ठीक है, नेक्स्ट neighborhood services is the
हॉस्पिटल एंड dispensaries. Okay, next neighborhood services is the hospital and dispensary. Okay student, for example, so many peoples are living there, so everyone required a hospital. What is the reason for that? If someone is sick, then where we take to that person. जब अगर कोई बीमार हो जाता है बेटा, तो हम उस पर्सन को इमिडिएटली कहाँ ले जा सकते हैं? हॉस्पिटल में, और वो भी हॉस्पिटल जो हमारे नेबरहुड प्लेसेस पे हैं. Is it clear? So this is a very important neighborhood services which is required by the people living in that area. जहाँ पे वो लोग रहते हैं बेटा, तो वहाँ क्या हॉस्पिटल भी होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब when you fall sick, क्योंकि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर को कहाँ दिखाने जाते हैं बेटा? हॉस्पिटल्स में जाते हैं. तो ठीक है, सारे जितने भी नेबरहुड, मोस्ट नेबरहुड्स हैव देयर ओन dispensary or a small hospital. This look after the ailments, accidents, etc. ठीक है. And what is the role of the hospital? Hospital का क्या function है? They look the doctors, they take care of the patient, they give them medicines. तो जितने भी neighborhood होते हैं बेटा, हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स. जैसे हम बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इमीडिएट हेल्प के लिए अपने नेबरहुड प्लेसेस में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहीं हम लोग प्रिफर करते हैं. ठीक है, हम लोग वहीं क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं अपने नेबरहुड प्लेसेस. तो नेबरहुड प्लेसेस में जहाँ आप रहते हो वहाँ क्या हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि बेटा कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है. क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था ना, एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि जैसे एक्सीडेंट का भी कोई टाइम टेबल होता है कि आज एक्सीडेंट होना है कि कल होना है. ऐसा नहीं है. एक्सीडेंट किसी का कभी भी हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है. सो हमें इमीडिएट हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है. तो दैट इज द रीज़न दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज. ओके, एंड डिस्पेंसरीज. अगर डिस्पेंसरीज हैं, देखो स्पेशली अगर विलेजेस एरियाज की बात करो तो वहाँ गवर्नमेंट जो विलेज पीपल्स के लिए क्या डिस्पेंसरीज भी हैं. एंड हियर द विलेजर्स गेट द मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, डॉक्टर सी देम and they give them medicines and they get these medicines free of cost. So especially in most of the villages you will see there is a small dispensaries in which people of the village they can go and they can go to the dispensary and doctor will check them, and with the related they are suffering from which disease, so they provide medicine to them and these medicines are given to the villager people at free of cost. ओके, क्योंकि नेबरहुड मैंने पहले ही बताया था, ऐसा नहीं है कि नेबरहुड सिर्फ सिटीज़ में होता है. ये विलेजेस में भी होगा, टाउन में भी होगा, सिटीज़ में भी होगा और बिग सिटीज़ में भी होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द मार्केट. So this is also one of the most important neighborhood services. For example, to buy things of our daily use. ठीक है बेटा, जैसे हम लोग अपने डेली यूज़ की थिंग्स के लिए डेली हम लोग कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं. ठीक है, तो हमारे नेबरहुड प्लेसेस में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, बिकॉज सम थिंग्स वी नीड एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. ठीक है, अदर ईटेबल आइटम्स भी हैं, milk is, so for all these there should be a market. ठीक है, there should be a market from which the person can buy the things. और जहाँ भी होता है each locality, जहाँ भी होते हैं each locality has its own market. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज है जो कि है मार्केट. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट, हम लोग बहुत सी चीज़ों को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जिसके लिए जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रोज़ खरीदने नहीं जाते. जैसे आप क्लोथ्स,
आप गए कपड़े खरीद आए, तो ऐसा नहीं है कि हम पर डे कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डेली मार्केट से बाई नहीं करते। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, तो जब बेटा हम लोग मार्केट की बात करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। जैसे हमें मार्केट से डेली फ्रेश वेजिटेबल लाना ही लाना है, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपके मिल्क है, ब्रेड है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू डेली बाई फ्रॉम द मार्केट। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू डेली बाई फ्रॉम द मार्केट। सो where you so this is also a very important neighborhood services। अगर ये नेबरहुड सर्विसेज नहीं होगी तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफिस एंड वाई वी गो टू द मार्केट फॉर डेली यूज, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। फॉर डेली नीड्स लाइक फॉर द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क, bread, etc. So these are the things for which we have to go to the market. These are the things for which we have to go to the market daily, ठीक है। ये ऐसी चीजें जिनके लिए हमें डेली कहाँ जाना पड़ता है बेटा, मार्केट में जाना पड़ता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस इज द पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक। सो देखो, आप देखते होगे जहां भी आप भी रहते होगे बेटा, हर लोकेलिटी में कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस होता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द पोस्ट ऑफिस? इफ यू वांट टू सेंड योर लेटर्स टू डिफरेंट और टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और इवन इन अदर कंट्री आल्सो, सो यू कैन send a letter through the post office. So every locality have some post office, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में सबसे मेन क्या होता है, उसका पिन कोड नंबर होता है। एंड दिस चेंज आफ्टर कुछ किलोमीटर्स के बाद जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के पिन कोड नंबर क्या होते हैं बेटा, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सेंड अ लेटर टू डिफरेंट पार्ट और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टू अनदर कंट्री आल्सो, टू अदर प्लेसेस आल्सो। एंड एक और इम्पोर्टेंट इसका क्या है, पोस्ट ऑफिस में आप मनी भी जमा करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो, ओके। इन द पोस्ट ऑफिस यू कैन आल्सो डिपॉजिट द मनी आल्सो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बैंक। सो एवरी लोकेलिटी हैव सम बैंक एंड व्हाट इज द advantage of the bank? In the bank we can save our money and we can deposit our money in the bank because in the bank our money is safe। हम अपनी मनी को कहाँ जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं बेटा, बैंक में, क्योंकि बैंक में हमारी मनी क्या रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। बैंक में जो हमारी मनी रहेगी बेटा वो क्या रहेगी, वो सेफ रहेगी हमारी मनी। इज इट क्लियर? सो वी कैन केप्ट आवर मनी इन द बैंक ऑल्सो। और इसके अलावा बैंक्स में more best facility is also given in the another facility which is given in the bank, that is the locker system। if you want to डिपॉजिट आप अपने प्रीशियस या ज्वेलरीज है, ये सारी चीज़ें भी आप चाहो तो बैंक में लॉकर लेके उसमें सब कुछ डिपॉजिट करा सकते हो और ये ज़्यादा सेफ है घर में रखने से, ठीक है। तो दैट इज द आल्सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज इज आल्सो अवेलेबल इन द बैंक। ये फैसिलिटी भी बैंक में अवेलेबल है। यू कैन डिपॉजिट योर ज्वेलरी आल्सो, आप अपनी ज्वेलरी भी अपने लॉकर ले लोगे, उसमें आप अपनी ज्वेलरी भी जमा करा सकते हो, ठीक है। सो दिस फैसिलिटीज इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक। नाउ नेक्स्ट इज द पार्क। तो पार्क इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज। देखो बिकॉज स्टूडेंट पार्क भी क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज में पार्क भी आता है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट बेटा? रीजन उसका ये है कि पार्क द पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप, ठीक है। पार्क की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो वो जा सकते हैं। इसमें ओल्ड पीपल्स भी जाते हैं, यंग भी जाते हैं, स्मॉल किड्स भी जाते हैं। सो everyone can go in the park, and park is very attractive because you will see lot of flowering plants there, okay, and even swings होती हैं, बच्चों के लिए झूले लगे रहते हैं, एक्सरसाइजेस करने वाले झूले भी लगे रहते हैं। इज इट क्लियर? सो पार्क इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। पार्क हम सबके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। आप जब भी किसी पार्क में जाते होगे देखते होगे कि वहाँ आपको बहुत फ्रेश आप अपने को फील करते होगे, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा प्लांट्स, ट्रीज होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ आपको बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है। वहाँ आपको जो एयर मिलेगी बेटा बिल्कुल कैसी मिलेगी? फ्रेश एयर मिलेगी। इसलिए पार्क भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज है, ठीक है। और बहुत से लोग पार्क में सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं। मैनी पीपल डू योगा एक्सरसाइजेस आल्सो इन द पार्क, and even small kids can play in the park also, but at the same time student, small kids, please do not pluck the flowers, ठीक है। कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। और अगर आप पार्क में जाते हो बहुत से बच्चे ईटेबल आइटम्स ले जाते हैं, दे थ्रो द वेस्ट हियर एंड देयर, दैट इज आल्सो नॉट राइट। पार्क में बेटा एक प्रॉपर डस्टबिन होता है। अगर आप ईटेबल आइटम्स लेके जाते हो पार्क में, सो थ्रो द गार्बेज, जो भी कूड़ा है, थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, ओके। पार्क में नहीं फेंकना है उसको। क्लीन, पार्क को क्लीन रखने का काम हमारा भी है, ठीक है। हम सबको इसकी केयर करनी है। सो डोंट प्लग द फ्लावर्स, ऐसे बच्चे बहुत करते हैं, कोई नहीं देख रहा है जल्दी से फ्लावर को तोड़ लेते हैं, ठीक है। दे ब्रेक द स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और प्लांट्स की ब्रांचेस तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं खेलने में। तो दिस टाइप्स ऑफ थिंग वी शुड नॉट डू इन द पार्क। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्लीन neighborhood. So we must keep our neighborhood clean. Next is the most important point is the clean neighborhood. ठीक है। देखो जहाँ जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वो बिल्कुल बेटा कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। सो देखो आप डेली देखते होगे कि आपकी मम्मी लोग डेली पूरे घर को झाड़ू भी लगाती हैं, मोपिंग पोछा भी करती हैं, डस्टिंग भी करती हैं, और जितना भी गार्बेज है ये सब है जो कूड़ा होता है घर का सब डस्टबिन में डालती हैं, और दैट डस्टबिन इज आल्सो प्रॉपरली कवर्ड, ठीक है। सो इन द सेम मैनर व्हाई योर मदर डू ऑल दिस थिंग्स, so that your house is free from germs, so your house is free from germs. So in the same manner student, when you are, if your surroundings are not clean, जगह जगह आप देख रहे हो stagnant water है, तो this type of water is a very favorable condition, breeding place for the mosquitoes, and if there are many mosquitoes in the surroundings, then the person living in that area never be a fit and healthy, क्योंकि मॉस्किटोज के काटने से डेंगू, मलेरिया, दिस टाइप्स ऑफ डिजीजेज स्प्रेड, ओके, दिस टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर स्प्रेड ड्यू टू द बाइट ऑफ द मॉस्किटोज। तो हमें अपने सराउंडिंग्स जहाँ हम रह रहे हैं बेटा उसको बिल्कुल कैसा रखना चाहिए? नीट और क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप देखते हो आप अपने घर का जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वेस्ट है, उसको प्रॉपर देखो। बाहर आप सराउंडिंग्स में बड़े बड़े डस्टबिन्स लगे होते हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर प्लेस पे उस गार्बेज का डिस्पर्सल किया करो। बहुत से लोग क्या करते हैं स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे या ग्राउंड्स में फेंक देते हैं वेस्ट, तो डैट इज़ आल्सो नॉट अ राइट थिंग। अगर आपके सराउंडिंग्स में इस तरह बहुत सा गार्बेज होगा तो वहाँ पे किसकी ग्रोथ होगी बेटा? जर्म्स की ग्रोथ होगी। और आप डेली अपनी सराउंडिंग्स को यूज़ कर रहे हो। वी आर नॉट ऑल द टाइम इन आवर हाउस,
many time we go out from the house. So you can only be fit and healthy when your surroundings are also clean, and avoid, don't use the plastic. Okay, thank you student.